friends, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Strike. The new WagonR is here and we are in Udaipur to try this big new WagonR. आपको इसकी कीमत के बारे में पता है, इसके फीचर्स के बारे में पता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता है, तो फिर बची है तो इसकी प्राइस। This story today will find out how does it perform, how does it drive, और इसमें कौन से ऐसे elements हैं which I like and which I don't like. This is third generation WagonR built on fifth generation Arctic platform. The most distinct innovation in this new WagonR is which this looks really distinct, this looks really smart. That's my opinion. I like it that much, but I would definitely say that this look will appeal many new buyers as well. Probably say 24% of existing WagonR buyers will go back and buy the same car, but I think they will very ज़्यादा मुकम्मल कार लगी है, जिसमें more well proportion as far as design is concerned. And to start with, यहाँ फ्रंट व्यू अगर देखें, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कंपनी से कह रही है पैटर्न काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी मॉडर्न लग रहा है with this chrome highlight. Both Suzuki badging, the whole bumper looks really broad, and this gives a very happy kind of smart and fresh face to this WagonR. And यहाँ पर बीच में chrome line है जो नीचे indicator या फिर ऊपर headlamp के पूरे section को divide करता है. But for me, the best part in this new design element is the shape of headlamp. The swept back design of this headlamp gives really cool image or cool feel to this whole new look of WagonR. One more distinct element in this car is the shoulder line. This is the portion which is giving this new WagonR very car-like feel as far as design is concerned. Earlier WagonRs, if you remember, most of the lines were very flattish and it gave very narrow and very MPV-ish kind of look. और ये जो line है, मुझे लगता है कि इस पूरे design element में सबसे interesting और सबसे prominent चीज़ों में से एक है जो इस WagonR के look को, personality को बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है. So as far as looks are concerned, I think front obviously looks very distinct, very new and very impressive. Rear, let's see. और पीछे से भी WagonR disappoint नहीं करती है. And if you look at this tail lamp cluster, this will remind you of some premium SUVs, I guess. But overall, this is looking well finished. डिज़ाइन अच्छा है, ऐसा डिज़ाइन है जो बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा ये डिज़ाइन. और दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट टॉल बॉय एट ऑल. एट द सेम टाइम डिमेंशंस चेंज हुए हैं बिकॉज ऑफ आर्टिक प्लेटफॉर्म. द होल व्हील बेस हैज़ इंक्रीज्ड. Inside the cabin space has increased by 30 mm. और जो shoulder room है for both the seats, front and rear, it is 120 mm plus now. So you have broader seats and spaces inside the cabin. And before we sit inside the car, let's take a look at this boot space, which is almost double the size which we used to see in the earlier version. And now it is around 341 liters, जो बढ़ के 710 liters तक space जा सकती है. If you want to get that kind of space with this 60-40 split rear seats, you fold these and you get so this is the space which you get. With the help of Arctic platform, they managed to increase space for both passengers and yes, luggage as well. Now the driver's seat of this new WagonR. I'll just adjust this driver's seat so that I have more space. कुछ साल पहले अगर इस तरह से किसी WagonR में बैठता, I would have believed कि WagonR में इस तरह के फीचर्स लोडेड होंगे. So let's start the story. यहाँ स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखें डार्क ग्रे फिनिश के साथ, यहाँ डल मेटालिक हाइलाइट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, क्रोम चमकता हुआ यहाँ पर सुजुकी का लोगो है. लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं जो एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करते हैं. स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को भी कंट्रोल आप कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं. प्लस यहाँ आप
मोड भी चेंज कर सकते हैं, कौन से सोर्स से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच विल इम्प्रेस द बायर्स ऑफ दिस सेगमेंट. जहाँ हम आमतौर पर पैसा वसूल सिटी सेंट्रिक तरह की गाड़ियाँ देखते हैं, वहाँ ये सब फीचर्स सभी गाड़ी में होने चाहिए. नॉट ओनली दे गिव better comfort, they also provide some kind of safety because you're not moving around too much just to change the channel or adjust the audio. So first thing which I would like to mention about this infotainment system is that you can actually use and connect 3 smartphones for different functions simultaneously. So one for navigation, one for music and one for telephony. जो studio है, Suzuki Studio Smart Play Studio, which gives you AHA, that's basically cloud-based music service. You can listen to any kind of music with the help of that. Navigation आपको इसमें मिल रहा है. इसके अलावा Apple CarPlay, Android Auto ये भी आपको इसमें मिल रहा है और पूरी तरीके से ये स्मार्ट पूरा नेविगेशन है. प्लस अपने रिमोट के ऊपर ऐप के ज़रिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप पिछली सीट पर बैठे हुए हैं तो. काफ़ी इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है जब भी आप टच कर रहे हैं. ये रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है. तो ये स्क्रीन मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा. नीचे अगर आप देखें तो यहाँ एयर कंडीशन का जो कंट्रोल है और वो बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से काम भी नहीं किया गया है. पूरा डार्क ग्रे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर सफ़ेद निशान है, बट एट द सेम टाइम कुछ भी हाइलाइट्स वैसा नहीं है जो बाकी जगहों के ऊपर आप हल्के हल्के मेटालिक हाइलाइट्स देख रहे हैं. यहाँ पर कुछ भी वो नहीं दिया गया है. सेम चीज़ यहाँ भी एक जो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है. देन यू हैव ऑक्सिन एंड USB slot for smartphone and ऑक्सिन audio input. You have some space to keep your smartphones away just below these 2 slots. यहाँ डैश के साथ ही इंटीग्रेटेड आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला आज हम चला रहे हैं फ़िलहाल सबसे पहले. सो उसका गियर शिफ्ट इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा. देन यू हैव सम स्पेस टू कीप स्मॉल स्टफ एंड चेंजेस जस्ट बिलो दिस. हैंड ब्रेक वो भी काफ़ी पतला है, विच इज़ मेकिंग इट वेरी एक्सेसिबल. आई थिंक इट इज़ फंक्शनल. Now look at the design of this dash, which is X-shaped design, which Maruti Suzuki is calling, because ऊपर का जो dark grey जो feel है वो ही element नीचे तक जा रहा है X की shape में. So they are giving that X-shaped name. Then you have this lower part, which is very light beige or maybe cream. Which has interesting shaped AC vents integrated जो थोड़े से tilted हैं passengers की साइड. वो मुझे काफ़ी फंक्शनल से लग रहे हैं. rear view mirror which you can adjust और इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, which is something pretty cool इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से. और जैसा मैंने कहा कि पैटर्न और सारे डिज़ाइन के हिसाब से ये स्मार्ट और काफ़ी आकर्षक लग रहा है. नीचे अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 2 पैनल में 1 लीटर का बॉटल रखने की जगह है, प्लस किनारे कुछ और सामान रखने की जगह देखने को मिल रही है. अब यहाँ पर कहानी आई थिंक लगभग ख़त्म हो गई है. सो लेट्स शिफ्ट टू the second row. But before we move to the second row, let's talk about the seat. This is well cushioned now. The bolstered sides, they help you better. They promise more comfort. Thigh support थोड़ा और better रहता. Cushioning थोड़ी सी और बेहतर रहती तो मुझे लगता है कि और बेटर रहता. ये सीट प्लस दिस शेप इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट शेप वो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा डिज़ाइन के हिसाब से. Now the second row. First thing you'll feel is lots of space. This looks spacious. More spacious. यहाँ शोल्डर रूम जैसा कंपनी बोल रही है कि ज़्यादा चौड़ा है. You can feel that. Knee room आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है. With my kind of height also, you have lots of knee room, lots of space for your foot movement. And thigh support is something, or the bench, I think it's too flat. Thigh support और यहाँ पर better रहता तो ज़्यादा comfortable ये सीट होती. But back angle is good, so it is giving better comfort. But at the same time, this is a tall boy, so I have lots of headroom. So a person like me, yeah, this makes me really happy. With most of the new cars coming with those sloping roof design, doesn't make sense to me at least. Yeah. Anyway, but again, this headrest is something which I'm not too happy about. This is fixed, and a person like me, even little above average Indian height, I think they won't be too comfortable with this headrest. It should have been adjustable. यहाँ AC vent आपको देखने को नहीं मिलेगा. So after the list of features, space and practicality aspect of this WagonR, let's go and drive this car.
drive only has the 1.2 liter version of WagonR, the new WagonR, and today started my day with this 1.2 liter version manual transmission WagonR, and now we'll talk about इसका performance कैसा है, क्या action मुझे देखने को मिल रहा है जब से मैंने इसे चलाना शुरू किया है. So this drive only has the 1.2 liter version of new WagonR, and I've started my day driving this 1.2 liter WagonR with manual transmission, and the first feeling you get is the same typical smoothness which WagonR is known for and promises. वही फीलिंग मुझे इसको चलाने के बाद भी शुरुआत में लग रही है. स्टीयरिंग व्हील आपको हल्का लगेगा, जो हैंडलिंग इसकी रहेगी आपको शुरुआत में वो काफ़ी स्मूथ सी रहेगी. ओवरऑल दिस इज़ अ क्वाइट कार, और मामला थोड़ा बदल जाता है जब आप हाईवे पर लेकर जाते हैं. सो आई स्टार्टेड ड्राइविंग दिस कार विद इन उदयपुर, एंड दैट वाज अर्ली मॉर्निंग. द ट्रैफिक वाज रियली लाइट, सो इट बिहेव्ड रियली नाइसली एंड इट वाज जिपी, और अच्छे से हैंडल करके शहर के अंदर ये तेज़ तरार तरीके से आ रही थी और मस्त ड्राइव वहाँ पर लगा. बट द मोमेंट यू टच हाईवे देन यू रियलाइज दैट ओके दिस इज अ WagonR. इवन विद 1.2 liter इंजन, द काइंड ऑफ पावर इट डिलीवर्स, यू स्टिल फील दैट थोड़ी सी और ताकत रहती तो और ज़्यादा मज़ा आता. ओवरटेक करते के वक्त लगता कि यहाँ थोड़ी और ताकत रहती तो और बेटर आपको इसकी ड्राइव फील लगती. तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस हाईवे के ऊपर वैसा आपको नहीं लगेगा. जाहिर सी बात है, दिस इज अ सिटी सेंट्रिक कार. इंजन स्टार्ट्स टॉकिंग और rather telling you after maybe 90 kmph kind of speed, or when you accelerating it really hard कि अब थोड़ा सा आराम से it becomes a little noisy after that. और इसके अलावा मुझे जो चीज़ थोड़ी सी लगी, गियर शिफ्ट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आपको नहीं लगेगा. मे बी जो ये गाड़ी में चला रहा हूँ हो सकता है उसके साथ ये इश्यू हो. वहाँ पर थोड़ी सी और प्रिसिशन रहता तो और ज़्यादा मज़ेदार मुझे इसका एक्सपीरियंस लगता. बट ओवरऑल, हैविंग सेड दैट, ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार आई फील इज़ वेरी बैलेंस. सिटी सेंट्रिक गाड़ी या सिटी के लिए जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं उसमें जिस तरह की हैंडलिंग की आपको उम्मीद होती है उस तरह की हैंडलिंग मुझे इसकी मिल रही है. एंड आई कैन फील दैट काफ़ी स्मूथ है पहले से, काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी कंसिस्टेंट है पहले के मुकाबले, और थोड़ी प्लांटेड होकर ये गाड़ी चलती है. उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट अगेन, कीपिंग द सेगमेंट इन माइंड, यू वोंट एक्सपेक्ट इट टू डू हाई स्पीड कॉर्नरिंग एंड ऑल. वहाँ पर थोड़ा सा आपको बॉडी रोल महसूस पहले से भी होता था, अभी भी होता है. थिंग इज़ दैट essentially this is a tall boy car, और वहाँ पर ये आपको फीलिंग आएगी ही. भले ही जो नई WagonR है चलाने में अब पहले से ज़्यादा कार लाइक हो गई है, बहुत ज़्यादा अपराइट या बहुत ज़्यादा हाई आप नहीं फील करते हैं. सो दैट वेज दिस न्यू डिज़ाइन हैज़ इम्प्रूव्ड द ओवरऑल फीलिंग ऑफ दिस कार और ड्राइविंग पोजिशन ऑफ दिस कार. So after driving the 1.2 liter version, what I liked and what I didn't like. First, what I didn't like much. The engine noise, even with 1.2 liter engine, it was something which bothers you on the highways. Lack of power, थोड़ा सा पावर और होता अगर मज़ेदार ये होती है. अगर आप कह रहे हैं कि जो रिपीट बायर्स हैं उनके लिए आप ज़्यादा ताकतवर गाड़ी दे रहे हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस स्पेशली लो एंड में थोड़ा सा और टॉर्की होता उसका बिहेवियर. सो वो एक मज़ेदार चीज़ होती. एंड थर्ड थिंग, कंफर्ट वाइज मुझे जो थाई सपोर्ट स्पेशली दूसरे वाले बेंच में जो मिल रहा है वो थोड़ा सा और बेटर होने की गुंजाइश थी. नाउ 3 things which I really like about this car. First thing, as you must have guessed, इसका हेडलैम्प का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फ्रंट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है. सेकेंड थिंग इज़ एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो काफ़ी स्मार्ट है, वाकई काफ़ी स्मार्ट है. इट इज़ लोडेड विद फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी. आई रियली लाइक दैट. एंड थर्ड थिंग वाज स्पेस. दिस इज़ मेकिंग इट मच मोर practical from the previous versions, not only for passengers but extra space for luggage as well. और ये तो इंडियंस को काफ़ी दिल से खुशी होती है जब इस तरह के स्पेस इनको छोटी गाड़ियों में मिल जाता है. So these are 3 things which I liked about this 1.2 version.